کوٹری ہوتی ہے اس سے بھی کئی گنا زیادہ برتر جو ہے وہ ایک ہول ہے جس میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی صاحبہ کو رکھا گیا ہے، اور جو دنیا میں کسی قیدی کے ساتھ، حالانکہ وہ سزا کاٹ رہی ہیں، اور اس گرین پاسپورٹ پر ایک ڈکلیریشن لکھی ہوئی ہے جو اس پاسپورٹ کے اوپر ایک ضمانت لکھی ہوئی ہے جو حکومت پاکستان کی طرف سے ہر شہری کو ملتی ہے، اور ایک ریکویسٹ ہے جو پوری دنیا کے ساتھ کی جاتی ہے، اس کا اس نے حوالہ دیا ہے۔ اس نے کہا کہ آپ کے پاسپورٹ پر، منسٹری آف فورن افیئرس کو اس نے کہا کہ آپ کے پاسپورٹ پر ایک تحریر لکھی ہے، وہ تحریر یہ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان تھرو پریزیڈنٹ آف پاکستان پوری دنیا سے یہ ریکویسٹ کرتی ہے۔ وہ ریکویسٹ کیا ہے؟ President request in the name of President of Islamic Republic of Pakistan all those to whom it may concern to allow the bearer to pass freely without let or hindrance and to afford the bearer such assistance and protections as may be necessary۔ یہ جو such assistance اور protection ہے یہ ہر شہری کو ملنا یہ اس کا قانونی حق ہے، اور یہ اس پاسپورٹ کے اندر جو پاکستانی پاسپورٹ پہ دنیا بھر میں کہیں ٹریول کر رہا ہو اس کو وہ یہ ضمانت دی جاتی ہے۔ اس نے منسٹری آف فورن افیئرس کو کہا کہ جو پاسپورٹ پاکستانی آپ نے دے رکھا ہے ڈاکٹر عافیہ صدیقی صاحبہ کو، جس کی بنیاد پر وہ پوری دنیا میں شناخت کی جاتی ہیں، اس پاسپورٹ کی لاج رکھیے، اس کی قدر کیجئے، اور اسی کے انداز میں امریکی اتھارٹیز سے اس کے لیے اسسٹنس اور اس کے لیے پروٹیکشن مانگیے۔ سینیٹر صاحب آپ سینیٹر صاحب کو بولنے دیں، آپ عدالت سے نہیں ہیں، کائنڈلی سینیٹر صاحب یہ بتا دیں کہ آج کی ان کیمرہ ہیئرنگ میں آپ لوگوں کا کیا معاملہ تھا، کیا انہوں نے خود بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جس طرح عمران شفیق ایڈوکیٹ صاحب نے بتا دیا کہ آج معمولی سی پیشرفت ہوئی ہے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ 20 سال ہو گئے ہیں ڈاکٹر عافیہ کو امریکی جیل کے اندر۔ یہ پاکستان کے تمام حکومتوں کی، خواہ وہ فوجی ہو یا سویلین ہو، ان کی ناکامی ہے کہ قوم کی ایک بیٹی پاکستانی شہری امریکی قید میں ہے۔ تو پیشرفت ہوئی ہے جس کا کریڈٹ میں عدالت کو دیتا ہوں، لیکن اب ہم حکومت کے اقدامات کو دیکھیں گے کہ حکومت کیا کر رہی ہے، نمبر ایک۔ دوسری بات یہ ہے کہ ڈاکٹر عافیہ کے اوپر پابندیاں سخت کر دی گئی ہیں، ان کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، ان کو ہول میں ڈالا گیا ہے، وہاں ان سے کسی کو ملنے نہیں دیا جا رہا۔ اس حوالے سے ہم 4 ستمبر کو لاہور میں عافیہ موومنٹ کی طرف سے ایک مارچ کریں گے، پیسفل مارچ ٹوورڈز امریکن قونصلیٹ، فریڈم فار عافیہ واک۔ ہم انشاءاللہ یہ 4 ستمبر کو کریں گے۔ میں نگران حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ امریکی حکومت کو خط لکھے ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کے حوالے سے، اور نگران حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ کمیٹی بنائے وزراء کی کہ وہ ڈاکٹر عافیہ کے کیس کو امریکہ کے ساتھ اٹھائیں، انٹرنیشنل فورا کے اوپر اٹھائیں، اور قوم کی اس بیٹی کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، وہاں اس کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، ان کے اوپر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، اور ریسنٹلی ایسی رپورٹس کی خبریں آ رہی ہے کہ جس میں ان کے پاس ان کے خلاف ہم پہلو وائلنس ہو رہا ہے، جس میں فزیکل وائلنس بھی ہے اور سیکشول وائلنس بھی ہے۔ یہ باعث شرم ہے۔ تو حکومت پاکستان، نگران حکومت اقدامات اٹھائیں، ان کے اوپر پابندیوں کو ختم کریں، ان کے ساتھ وائلنس کو ختم کریں، ان کی رہائی کا معاملہ امریکہ کے ساتھ اٹھائیں، اور اس حوالے سے کردار ادا کریں۔ میرا مائک ہوگا، چھوٹا مائک ہوگا، یہ دیکھیں، ہمیں بڑی مایوسی ہوئی ہے، ہمیں بڑا افسوس ہوا ہے کہ سپریم کورٹ کے حکم کو ہائی کورٹ نہیں مانتا، اور ہائی کورٹ کے حکم کو ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نہیں مانتا۔ یہ ہے ہمارا نظام انصاف۔ سپریم کورٹ کے سامنے 3 دن پہلے پاکستان میں کال کوٹری ہوتی ہے اس سے بھی کئی گنا زیادہ برتر جو ہے وہ ایک ہول ہے جس میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی صاحبہ کو رکھا گیا ہے، اور جو دنیا میں کسی قیدی کے ساتھ، حالانکہ وہ سزا کاٹ رہی ہیں، اور اس گرین پاسپورٹ پر ایک ڈکلیریشن لکھی ہوئی ہے جو اس پاسپورٹ کے اوپر ایک ضمانت لکھی ہوئی ہے جو حکومت پاکستان کی طرف سے ہر شہری کو ملتی ہے، اور ایک ریکویسٹ ہے جو پوری دنیا کے ساتھ کی جاتی ہے، اس کا اس نے حوالہ دیا ہے۔ اس نے کہا کہ آپ کے پاسپورٹ پر، منسٹری آف فورن افیئرس کو اس نے کہا کہ آپ کے پاسپورٹ پر ایک تحریر لکھی ہے،
वो तहरीर यह है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान थ्रू प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान पूरी दुनिया से ये रिक्वेस्ट करती है। वो रिक्वेस्ट क्या है? प्रेसिडेंट रिक्वेस्ट इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान all those to whom it may concern to allow the bearer to pass freely without let or hindrance and to afford the bearer such assistance and protections as may be necessary। ये जो such assistance और protection है, ये हर शहरी को मिलना, ये उसका कानूनी हक है। और ये पासपोर्ट के अंदर जो पाकिस्तानी पासपोर्ट पे दुनिया भर में कहीं ट्रैवल कर रहा हो, उसको वो ये जमानत दी जाती है। उसने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को कहा कि जो पासपोर्ट पाकिस्तानी आपने दे रखा है डॉक्टर आफिया सिद्दीकी साहिबा को, जिसकी बुनियाद पर वो पूरी दुनिया में शनाख्त की जाती हैं, उस पासपोर्ट की लाज रखिए, उसकी कदर कीजिए और उसी के अंदाज में अमेरिकी अथॉरिटीज से उसके लिए असिस्टेंस और उसके लिए प्रोटेक्शन मांगिए। सेनेटर साहब, आप सेनेटर साहब को बोल रहे थे, आप अदालत से नहीं हैं। काइंडली सेनेटर साहब ये बता दें कि आज की इन कैमरा हेयरिंग में आप लोगों का क्या मामला था, क्या उन्होंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जिस तरह इमरान शफी के एडवोकेट साहब ने बता दिया कि आज मामूली सी पेशरफ्त हुई है और बदकिस्मती ये है कि 20 साल हो गए हैं डॉक्टर आफिया को अमरीकी जेल के अंदर। ये पाकिस्तान के तमाम हुकूमतों की, खा वो फौजी हो या सिविलियन हो, उनकी नाकामी है कि कौम की एक बेटी पाकिस्तानी शहरी अमरीकी कैद में है। तो पेशरफ्त हुई है जिसका क्रेडिट मैं अदालत को देता हूं, लेकिन अब हम हुकूमत के इक़दाम को देखेंगे कि हुकूमत क्या कर रही है, नंबर एक। दूसरी बात यह है कि डॉक्टर आफिया के ऊपर पाबंदियां सख्त कर दी गई हैं, उनको टॉर्चर किया जा रहा है, उनको होल में डाला गया है, वहां उनसे किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा। इस हवाले से हम 4 सितंबर को लाहौर में आफिया मूवमेंट की तरफ से एक मार्च करेंगे, पीसफुल मार्च टुवर्ड्स अमेरिकन कॉन्सुलेट, फ्रीडम फॉर आफिया वॉक। हम इंशाअल्लाह ये 4 सितंबर को करेंगे। मैं निगरान हुकूमत से मुतालबा करता हूं कि वो अमरीकी हुकूमत को खत लिखे डॉक्टर आफिया की रिहाई के हवाले से, और निगरान हुकूमत से मुतालबा करता हूं कि वो कमेटी बनाए वज़रा की कि वो डॉक्टर आफिया के केस को अमरीका के साथ उठाएं, इंटरनेशनल फोरा के ऊपर उठाएं, और कौम की उस बेटी के साथ जो जुल्म हो रहा है, वहां उसको टॉर्चर किया जा रहा है, उनके ऊपर पाबंदियां लगाई जा रही है। और रिसेंटली ऐसी रिपोर्ट्स की खबरें आ रही है कि जिसमें उनके पास उनके खिलाफ हम पहलू वायलेंस हो रहा है, जिसमें फिजिकल वायलेंस भी है और सेक्सुअल वायलेंस भी है। ये बाइस शर्म है। तो हुकूमत पाकिस्तान, निगरान हुकूमत इकदाम उठाएं, उनके ऊपर पाबंदियों को खत्म करें, उनके साथ वायलेंस को खत्म करें, उनकी रिहाई का मामला अमेरिका के साथ उठाएं और इस हवाले से किरदार अदा करें। मेरा माइक होगा, छोटा माइक होगा, ये वाला। देखें, हमें बड़ी मायूसी हुई है, हमें बड़ा अफसोस हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को हाई कोर्ट नहीं मानता और हाई कोर्ट के हुक्म को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नहीं मानता। ये है हमारा निज़ाम इंसाफ। सुप्रीम कोर्ट के सामने 3 दिन पहले पाकिस्तान में काल कोठरी होती है, इससे भी कई गुना ज्यादा बरतर जो है वो एक होल है जिसमें डॉक्टर आफिया सिद्दीकी साहिबा को रखा गया है, और जो दुनिया में किसी कैदी के साथ, हालांकि वो सजा काट रही हैं, और उस ग्रीन पासपोर्ट पर एक डिक्लेरेशन लिखी हुई है, जो उस पासपोर्ट के ऊपर एक जमानत लिखी हुई है जो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से हर शहरी को मिलती है, और एक रिक्वेस्ट है जो पूरी दुनिया के साथ की जाती है, उसका उसने हवाला दिया है। उसने कहा कि आपके पासपोर्ट पर, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को उसने कहा कि आपके पासपोर्ट पर एक तहरीर लिखी है। वो तहरीर यह है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान थ्रू प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान पूरी दुनिया से ये रिक्वेस्ट करती है। वो रिक्वेस्ट क्या है? प्रेसिडेंट रिक्वेस्ट इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान all those to whom it may concern to allow the bearer to pass freely without let or hindrance and to afford the bearer such assistance and protections as may be necessary। ये जो such assistance और protection है, ये हर शहरी को मिलना, ये उसका कानूनी हक है।
और ये पासपोर्ट के अंदर जो पाकिस्तानी पासपोर्ट पे दुनिया भर में कहीं ट्रैवल कर रहा हो उसको वो ये जमानत दी जाती है। उसने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को कहा कि जो पासपोर्ट पाकिस्तानी आपने दे रखा है डॉक्टर आफिया सिद्दीकी साहिबा को, जिसकी बुनियाद पर वो पूरी दुनिया में शनाख्त की जाती हैं, उस पासपोर्ट की लाज रखिए, उसकी कदर कीजिए और उसी के अंदाज में अमेरिकी अथॉरिटीज से उसके लिए असिस्टेंस और उसके लिए प्रोटेक्शन मांगिए। सेनेटर साहब, आप सेनेटर साहब को बोल रहे थे, आप अदालत से नहीं है, काइंडली सेनेटर साहब ये बता दें कि आज की इन कैमरा हेयरिंग में आप लोगों का क्या मामला था, क्या उन्होंने वो बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जिस तरह इमरान शफी के एडवोकेट साहब ने बता दिया कि आज मामूली सी पेशरफ्त हुई है और बदकिस्मती ये है कि 20 साल हो गए हैं डॉक्टर आफिया को अमरीकी जेल के अंदर। ये पाकिस्तान के तमाम हुकूमतों की, खा वो फौजी हो या सिविलियन हो, उनकी नाकामी है कि कौम की एक बेटी पाकिस्तानी शहरी अमरीकी कैद में है। तो पेशरफ्त हुई है जिसका क्रेडिट मैं अदालत को देता हूं, लेकिन अब हम हुकूमत के इक़दाम को देखेंगे कि हुकूमत क्या कर रही है, नंबर एक। दूसरी बात यह है कि डॉक्टर आफिया के ऊपर पाबंदियां सख्त कर दी गई हैं, उनको टॉर्चर किया जा रहा है, उनको होल में डाला गया है, वहां उनसे किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा। इस हवाले से हम 4 सितंबर को लाहौर में आफिया मूवमेंट की तरफ से एक मार्च करेंगे, पीसफुल मार्च टुवर्ड्स अमेरिकन कॉन्सुलेट, फ्रीडम फॉर आफिया वॉक। हम इंशाल्लाह ये 4 सितंबर को करेंगे। मैं निगरान हुकूमत से मुतालबा करता हूं कि वो अमरीकी हुकूमत को खत लिखे डॉक्टर आफिया की रिहाई के हवाले से, और निगरान हुकूमत से मुतालबा करता हूं कि वो कमेटी बनाए वज़रा की कि वो डॉक्टर आफिया के केस को अमेरिका के साथ उठाएं, इंटरनेशनल फोरा के ऊपर उठाएं, और कौम की उस बेटी के साथ जो जुल्म हो रहा है, वहां उसको टॉर्चर किया जा रहा है, उनके ऊपर पाबंदियां लगाई जा रही है। और रिसेंटली ऐसी रिपोर्ट्स की खबरें आ रही है कि जिसमें उनके पास उनके खिलाफ हम पहलू वायलेंस हो रहा है, जिसमें फिजिकल वायलेंस भी है और सेक्सुअल वायलेंस भी है। ये बाइस शर्म है। तो हुकूमत पाकिस्तान, निगरान हुकूमत इकदाम उठाएं, उनके ऊपर पाबंदियों को खत्म करें, उनके साथ वायलेंस को खत्म करें, उनकी रिहाई का मामला अमेरिका के साथ उठाएं और इस हवाले से किरदार अदा करें। मेरा माइक होगा, छोटा माइक होगा, ये वाला। देखें, हमें बड़ी मायूसी हुई है, हमें बड़ा अफसोस हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को हाई कोर्ट नहीं मानता और हाई कोर्ट के हुक्म को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नहीं मानता। ये है हमारा निज़ाम इंसाफ। सुप्रीम कोर्ट के सामने 3 दिन पहले पाकिस्तान में काल कोठरी होती है, इससे भी कई गुना ज्यादा बरतर जो है वो एक होल है जिसमें डॉक्टर आफिया सिद्दीकी साहिबा को रखा गया है, और जो दुनिया में किसी कैदी के साथ, हालांकि वो सजा काट रही हैं, और उस ग्रीन पासपोर्ट पर एक डिक्लेरेशन लिखी हुई है, जो उस पासपोर्ट के ऊपर एक जमानत लिखी हुई है जो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से हर शहरी को मिलती है, और एक रिक्वेस्ट है जो पूरी दुनिया के साथ की जाती है, उसका उसने हवाला दिया है। उसने कहा कि आपके पासपोर्ट पर, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को उसने कहा कि आपके पासपोर्ट पर एक तहरीर लिखी है। वो तहरीर यह है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान थ्रू प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान पूरी दुनिया से ये रिक्वेस्ट करती है। वो रिक्वेस्ट क्या है? President request in the name of President of Islamic Republic of Pakistan all those to whom it may concern to allow the bearer to pass freely without let or hindrance and to afford the bearer such assistance and protections as may be necessary। ये जो such assistance और protection है, ये हर शहरी को मिलना, ये उसका कानूनी हक है। और ये पासपोर्ट के अंदर जो पाकिस्तानी पासपोर्ट पे दुनिया भर में कहीं ट्रैवल कर रहा हो उसको वो ये जमानत दी जाती है। उसने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को कहा कि जो पासपोर्ट पाकिस्तानी आपने दे रखा है डॉक्टर आफिया सिद्दीकी साहिबा को, जिसकी बुनियाद पर वो पूरी दुनिया में शनाख्त की जाती हैं, उस पासपोर्ट की लाज रखिए, उसकी कदर कीजिए और उसी के अंदाज में अमेरिकी अथॉरिटीज से उसके लिए असिस्टेंस और उसके लिए प्रोटेक्शन मांगिए। सेनेटर साहब, आप सेनेटर साहब को बोल रहे थे, आप अदालत से नहीं है, काइंडली सेनेटर साहब ये बता दें कि आज की इन कैमरा हेयरिंग में आप लोगों का क्या मामला था, क्या उन्होंने
وہ مطابق آئے گا۔ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जिस तरह इमरान शफीक एडवोकेट साहब ने बता दिया कि आज मामूली सी पेशरफ्त हुई है और बदकिस्मती ये है कि 20 साल हो गए हैं डॉक्टर आफिया को अमरीकी जेल के अंदर। ये पाकिस्तान के तमाम हुकूमतों की, खा वो फौजी हो या सिविलियन हो, उनकी नाकामी है कि कौम की एक बेटी पाकिस्तानी शहरी अमरीकी कैद में है। तो पेशरफ्त हुई है जिसका क्रेडिट मैं अदालत को देता हूं, लेकिन अब हम हुकूमत के इक़दाम को देखेंगे कि हुकूमत क्या कर रही है, नंबर एक। दूसरी बात यह है कि डॉक्टर आफिया के ऊपर पाबंदियां सख्त कर दी गई हैं, उनको टॉर्चर किया जा रहा है, उनको होल में डाला गया है, वहां उनसे किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा। इस हवाले से हम 4 सितंबर को लाहौर में आफिया मूवमेंट की तरफ से एक मार्च करेंगे, पीसफुल मार्च टुवर्ड्स अमेरिकन कॉन्सुलेट, फ्रीडम फॉर आफिया वॉक। हम इंशाल्लाह ये 4 सितंबर को करेंगे। मैं निगरान हुकूमत से मुतालबा करता हूं कि वो अमरीकी हुकूमत को खत लिखे डॉक्टर आफिया की रिहाई के हवाले से, और निगरान हुकूमत से मुतालबा करता हूं कि वो कमेटी बनाए वज़रा की कि वो डॉक्टर आफिया के केस को अमेरिका के साथ उठाएं, इंटरनेशनल फोरा के ऊपर उठाएं, और कौम की उस बेटी के साथ जो जुल्म हो रहा है, वहां उसको टॉर्चर किया जा रहा है, उनके ऊपर पाबंदियां लगाई जा रही है। और रिसेंटली ऐसी रिपोर्ट्स की खबरें आ रही है कि जिसमें उनके पास उनके खिलाफ हम पहलू वायलेंस हो रहा है, जिसमें फिजिकल वायलेंस भी है और सेक्सुअल वायलेंस भी है। ये बाइस शर्म है। तो हुकूमत पाकिस्तान, निगरान हुकूमत इकदाम उठाएं, उनके ऊपर पाबंदियों को खत्म करें, उनके साथ वायलेंस को खत्म करें, उनकी रिहाई का मामला अमेरिका के साथ उठाएं और इस हवाले से किरदार अदा करें। मेरा माइक होगा, छोटा माइक होगा, ये वाला। देखें, हमें बड़ी मायूसी हुई है, हमें बड़ा अफसोस हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को हाई कोर्ट नहीं मानता और हाई कोर्ट के हुक्म को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नहीं मानता। ये है हमारा निज़ाम इंसाफ।